Good morning, students. Welcome you in your English class, and today's topic is buzz expression the future. In yesterday video, I have explained you about the uses of will. So beta, in today's class, I will explain you about shall, what are the uses of shall, and in which method we use future tense. So let's start today's class and start from the uses of shall. Before starting the topic, I want to tell you about the uses of shall. Shall is not common in English grammar. जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो shall है वो कॉमन नहीं है. Shall is not common in English grammar. In modern English, shall I and shall we are used in question to make offers or suggestions. देखिए बेटा, as we know, जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we know, shall is used for I and we. We all know that shall is used for I and we. In future tense, we all know that shall is used with I and we, and other subjects we use will. Future tense में I और we के साथ हम shall का यूज करते हैं और other subject के साथ हम किसका यूज करते हैं? will का यूज करते हैं. Now बेटा, I want to ask you, can you tell me what are the uses of shall? Yes, I tell you. देखिए, shall is used in किसमें? Questions के लिए, making questions. Shall is used for making questions. तो shall I, जैसे कि shall I, यहाँ मैं इसको क्लियर करती हूँ. Shall I and shall we. Shall I and shall we. यही यूज होता है shall I and shall I and shall we are used in questions, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. shall I, shall we, क्या मैं, क्या हम. to make offer or suggestions, to make offer or suggestions. अब ऑफर या सजेशन करने के लिए जहां हम क्वेश्चंस करते हैं वहां पर हम shall I और shall we का क्या करते हैं? यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, shall I get you? Shall I get you some hot milk? तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ shall I का यूज हुआ, ये क्या हो गया? ऑफर हो गया. ऑफर करना ही तो हो गया. क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? थोड़ा गर्म दूध दे सकता हूँ, ला सकता हूँ. तो shall I get you some hot milk? ऑफर है ये, है ना? यहाँ आपने ऑफर किया है. अब ऐसे ही सजेशंस में shall we visit, shall we visit, shall we visit, क्या हम मिलेंगे?
shall we visit the adventure island, the adventure island, the adventure island this weekend, this weekend, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या है, ये शो हो रहा है बेटा सजेशन। दिस सेंटेंस is expressing the suggestion in this statement. Shall we visit the adventure island this weekend? क्या हम इस वीकेंड में क्या कर सकते हैं, एडवेंचर आइलैंड पर मिलेंगे? क्या हम इस वीकेंड में एडवेंचर आइलैंड पर मिलेंगे? तो ये तो हो गए यूज किसके बेटा, शैल के। यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन किया, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कुछ ऑफर करने के लिए, आपको किसी से कोई क्वेश्चन करना है, कुछ ऑफर करना है, या कुछ सजेशन आपको देना है, या कुछ सजेस्ट आप करना चाहते हैं, तो वहां आप किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस ऑन गोइंग टू। इन फ्यूचर टेंस गोइंग टू इज यूज्ड। So next topic we shall discuss on going to. Going to। अब going to का यूज बेटा हम कहाँ करते हैं, going to को यूज कैसे करेंगे? तो we use going to suggest an intention। एक तो बेटा सजेस्ट करने के लिए we use going to suggest, we use going to form to suggest that there is an intention। going to, ये बेटा ये going to जो है वो क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। ये going to क्या है, वर्ब है। we use going to verb suggest that there is an intention or a decision। जहां पर स्पीकर का किसी काम को करने के लिए इंटेंशन हो, या फिर उसने कोई डिसीजन लिया है किसी काम को करने का, किसी एक्शंस को करने का, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू प्ले a friendly match on Sunday। We are going to play a friendly match on Sunday। बेटा to understand going to form, you can see in the table that is C in your video। You can easily understand the uses of going to। Next, we also use this form to predict the future action। To show future action when there is, to show a future action, क्या दिखाने के लिए, फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए, when there is clear evidence, when there is clear evidence, जहां पर क्लियर एविडेंस हो,
जहाँ पर बेटा क्लियर एविडेंस हो फ्यूचर एक्शन के लिए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? गोइंग टू फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर एविडेंस ऑफ coming to this, जहां पर ऐसा लगे कि हमारा स्टेटमेंट सही होने जा रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होने जा रहा है? सही होने जा रहा है। कोई भी बात है वो क्या होने जा रही है? सही होने जा रही है। तो वहां पर भी हम गोइंग टू फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं इस टेबल की, जो आपको यहाँ बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रही है। आप टेबल की हेल्प से सीख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गोइंग टू फॉर्म का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, Preeti is going to participate in music competition next month. In this statement, प्रीति is going to participate in music competition next month. जो प्रीति है वो अगले मंथ में क्या करने जा रही है? म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या होने जा रहा है? ट्रुथ होने जा रहा है, सत्य में परिवर्तित होने जा रहा है। जो एविडेंस है वो हमें क्लियर हो रहे हैं कि ये क्या होने जा रहे हैं? आपके कमिंग ट्रू होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। तो वहां पर आपने किसका यूज किया? गोइंग टू फॉर्म का यूज किया। ये सब क्लियर चीजें बेटा आपको इस टेबल से हो जाएंगी, जो आपको यहाँ जो टेबल क्लियर हो रही है, शो हो रही है, उसकी हेल्प से आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि उसमें कैसे आपने गोइंग टू यूज किया है, गोइंग टू का यूज हुआ है, कैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद द फ्यूचर मीनिंग किस तरीके से आपने यूज किया है। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट का यूज भी फ्यूचर टेंस में किया जाता है। उसके यूजेस कैसे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद द फ्यूचर मीनिंग। अब जैसे कि एग्जांपल्स में आपको क्लियर करती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट में है, क्या ये फ्यूचर में इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Rakhi is getting married next week. मैं हेडिंग क्लियर कर देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस with future meaning। अब देखिए, राखी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। राखी अगले सप्ताह क्या होने जा रही है? मतलब शादी करने जा रही है। राखी शादी करने जा रही है, तो ये प्री प्लानिंग है, पहले से हमको पता है, लेकिन ये हम कब कह रहे हैं? प्रेजेंट में कह रहे हैं, है ना। राखी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, बट ये जो नेक्स्ट वीक है उससे क्लियर हो रहा है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। स्पीकर जो है वो कब बात कर रहा है बेटा? प्रेजेंट में। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रुथ कब होने जा रहा है? कमिंग ट्रुथ कब होने जा रहा है? नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पर हमने किसका जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ इज गेटिंग, गेट के साथ आपने आईएनजी फॉर्म का यूज किया, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर मीनिंग के साथ यूज किया गया। आप टेबल में भी देख सकते हैं कि इसी तरीके से वहां पर भी इसके यूजेस शो किए गए हैं। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट विद द फ्यूचर मीनिंग।
जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट विद फ्यूचर मीनिंग, इसका यूज आप बेटा किस तरीके से करते हैं, किस मेथड से करेंगे। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसका आप किस तरीके से फ्यूचर में यूज करते हैं, जैसे हाउ वी यूज इन फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स टुमारो, द ट्रेन leaves tomorrow, leaves tomorrow morning at 5 AM। अब देखिए बेटा, इन सिंपल प्रेजेंट आप यूज किसका करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा एस का करते हैं। बट बेटा यहाँ पर आप फ्यूचर मीनिंग के साथ फ्यूचर टेंस में इसका यूज कैसे कर रहे हैं, द ट्रेन लीव्स टुमारो, जो ट्रेन है वो कल छूटेगी, कितने टाइम पर, मॉर्निंग, सुबह एट 5 AM, सुबह 5 बजे। तो यहाँ पर जो मीनिंग क्लियर हो रहा है वो किससे हो रहा है, फ्यूचर से क्लियर हो रहा है। किससे क्लियर हो रहा है, फ्यूचर से। तो इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर में करते हैं। यहाँ पर बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स से रखे हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, with the help of these examples you can understand very easily. So beta, thank you for today and meet in next video.